In this chapter, we are studying about urban. Urban means cities. Yes. Let's start the chapter. Just as in village, people practice various occupation in town and cities. In this chapter, we will study them in detail. Let's see types of occupation in urban areas. There are 3 types of occupation: primary, secondary, and tertiary. Underline them. First of all, let's study about primary occupation. What are the primary occupation? Let's see. Primary occupation involve the production of raw material using natural resources. ऐसी चीजों का, ऐसे कच्चे माल का प्रोडक्शन जिनका यूज नेचुरल रिसोर्सेज से होता है. Primary occupation includes, underline some examples of primary occupation. Primary occupation includes farming, fishing, mining. Underline them all. Underline them. The material produced through primary activity includes cotton, wood, coal, etc. Understood the primary occupation? Show me your thumbs up. Okay, great. Now move to the next, secondary occupation. Secondary occupation includes which change raw material into the useful products. Primary occupation आपका क्या था? जहां पर रॉ मटेरियल्स को यूज किया जा रहा था, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा था. बट जो आपका सेकेंडरी जो आपका ऑक्यूपेशन है, उसमें क्या है? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? यूजफुल आइटम्स में. लाइकवाइज जो फैक्ट्रीज में वर्क होता है वो. ठीक है. लेट्स सी. Includes activities such as raw material into useful product. For example, underline the examples. Cotton as raw material is used to make clothes. Primary occupation में cotton का use हो रहा था. Secondary occupation में cotton को किस में change कर दिया? Clothes में. Cotton को किस में convert कर दिया? Clothes में. Similarly, wood as raw material is used to make furniture. तो secondary occupation में क्या हो गया? Furniture prepare करना. ठीक है. Primary occupation में क्या था? Wood को यूज किया जा रहा था, wood को तैयार किया जा रहा था. और secondary occupation में क्या हो गया? Secondary occupation में उसका फर्नीचर बना दिया गया. जो मतलब secondary occupation है जिनका, वो कौन होते हैं? फर्नीचर बनाने वाले या फैक्ट्रीज में काम करने वाले. ठीक है. नाउ हैव अ लुक ऑन टेरिटरी ऑक्यूपेशन. टेरिटरी ऑक्यूपेशन includes activity that provide essential services to the people. For example, जो essential services हैं जैसे कि टीचिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग. ठीक है. इनको भी आप अंडरलाइन करेंगे. कर लिया आपने? तो तीनों ऑक्यूपेशन आपको क्लियर हुए. अभी आपको एग्जांपल्स क्लियर हुए. ये क्या है आपके तीनों ऑक्यूपेशंस? शो मी थम्स अप इफ यस. Okay, great. While primary activities are majorly practiced in village, secondary or tertiary activities are practiced in town and cities. Now, occupation in urban areas. Rani, here is a story. Rani had just migrated from her village to Dinapur to Delhi. अब क्या है? रानी जो है उसने अभी माइग्रेट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह में रहने गई है. कहाँ से? पहले वो एक दीनापुर विलेज में रहती थी, लेकिन अब वो कहाँ पे आ गई है? दिल्ली में आ गई है. इन सर्च ऑफ वर्क विद हर हस्बैंड घनश्याम.
उसके हस्बैंड के लिए नौकरी ढूंढने के लिए, जिसका नाम क्या है, घनश्याम है. Their first destination to find the work as help in some shop or house in central market of Lajpat Nagar. As they got off the bus, the first thing they saw was a long queue of rickshaw pullers and auto rickshaw drivers waiting for customer. आप कभी भी यहाँ पर जाओ, मेट्रो स्टेशन से कभी भी आप उतरो, या फिर दिल्ली का जो बस अड्डा है वहां से आप उतरो, या रेलवे स्टेशन से जब आप उतरते हो तो बाहर किसका भीड़ देखते हो, रिक्शा पुलर्स का और ऑटो रिक्शाज वाले का. वो कहते हैं ना, आइए आइए मैडम, बैठ जाइए, आइए बैठिए बैठिए, हम ले जाएंगे. ठीक है, तो ऐसे ही उनके साथ हुआ. जब वो वहां पर जब वो अपनी बस से उतरे तो उन्होंने फर्स्ट क्या देखा कि वहां पर बहुत सारे रिक्शा पुलर्स और ऑटो रिक्शा वाले खड़े थे, जो कि वेट कर रहे थे कस्टमर्स का कि कोई ना कोई हमारे रिक्शे में बैठे और हम आज की कमाई कर सके. दे एंटर्ड इन द मार्केट मल्टीपल हॉकर्स सेलिंग द फूड्स. हॉकर्स कौन होते हैं, जो आवाज लगा के अपने सामान को बेचते हैं. ठीक है, तो तब उन्होंने, जब वो सेंट्रल मार्केट के अंदर गए, तब उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग जो थे, फ्रूट बेचने वाले, वेजिटेबल बेचने वाले, वो सब क्या कर रहे थे, सब आवाजें लगा रहे थे कि आप आइए और मेरा ये आइटम ले लीजिए. रिमाइंडेड देम ऑफ द फेयर ऑफ द हेल्ड इन द विलेज. अब जब वो ये चीजें सुन रहे थे तो उनको किसकी याद आ रही थी, मेला देखा है आपने गाँव का, कभी मेला देखा है किसी ने, जो गाँव में मेले लगते हैं, नहीं देखे? ओके, यहाँ पे ट्रेड फेयर तो देखा है, दिल्ली में ट्रेड फेयर तो देखा है कि बहुत सारी शॉप्स होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बेचने वाले बैठे होते हैं. तो सिमिलरली गाँव में भी मेले लगते हैं. ठीक है, तो जब उन्होंने ये जब सब चीज देखी सेंट्रल मार्केट में, तो उनको किसकी याद आई, जो उनके गांव में मेला लगता था. However, the main attraction for the Rani was glittering small big shop in the market. और सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव क्या था वहां पर कुछ शॉप्स थी जो चमक रही थी. They sold everything from cloth to jewelry. और ज्वेलरी से लेके क्लोथ, फुटवेयर, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, वो सब कुछ बेच रहे थे. उन शॉप्स में सब कुछ मिल रहा था. Ghanshyam had been to this market before. He showed her some big restaurant in market that offered fancy food dishes, sweets around the world. और उसने, घनश्याम ने अपनी वाइफ को क्या दिखाया, कुछ रेस्टोरेंट दिखाए जो कुछ खाने के आइटम प्रोवाइड करवाते थे. As they kept walking, और जब वो चलते जा रहे थे, they found an advertisement of job opening for tailor in the boutique. अब उन्होंने क्या देखा, जैसे ही वो रास्ते से जा रहे थे तो वहां पर एक टेम्पलेट गिरा हुआ था, या उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट देखी, किसकी, टेलर की. बुटीक में एक टेलर की जरूरत थी. दे वेंट टू मेंशन्ड एड्रेस, और जब वो एड्रेस उसमें मेंशन था कि अगर हमें एक टेलर की जरूरत है आप यहाँ पर आइए, तो जब उन्होंने वो एड्रेस देखा तो वो वहां पर पहुंच गए. Finally, Rani begged the job as tailor in the same boutique. Ghanshyam got to know about requirement of security guard in nearby bank. और रानी को बुटीक में एज अ टेलर जॉब मिल गई. और घनश्याम भी क्या ढूंढने लगा, अब कोई सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ढूंढने लगा उसके बुटीक के आसपास किसी बैंक में. The owner of boutique not only gave him the address but also spoke the concerned person to fix Ghanshyam job in the bank. अब जो टेलर, जहाँ पे बुटीक था, जहाँ पे टेलर का वर्क रानी कर रही थी, तो उसी के ऑनर ने घनश्याम को एक बैंक बताया. और ना ही उसने बैंक बताया, उसने क्या था, आगे जा उनको, जो बैंक के ऑनर थे, उनको कंसर्न भी किया कि आप प्लीज घनश्याम को रख लीजिए, ये एक अच्छा आदमी है. ठीक है, द डे एंडेड ऑन हैप्पी नोट फॉर बोथ रानी एंड घनश्याम. और दोनों का दिन बहुत अच्छे से रहा. आज का जो दिन था उनका बहुत अच्छा रहा, क्योंकि दोनों को जॉब मिल गई. ये तो थी रानी और घनश्याम